Welcome once again to my channel Guru Mandra with Sunil Kumar. Today we are here to study class 10 history chapter number 1 visualizing the nation means giving face to the nation. When we talk about visualizing the nation means imagining a figure of the nation, how the nation would look like. While it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, when we talk about to represent a king who ruled over our country 100 years before, you can portray, you can express or show him through his statue or a figure or a painting. But how does one go about giving a face to the nation? That is the question to you. If you are talking about Gandhiji, you can express Gandhiji through his pictures, through his paintings, which is available to us. But when we talk about a nation, how does one can give a face to the nation? How can one represent a nation, or how can someone give a face to the nation? Artists in the early 19th centuries found a way out by personifying the nation. Here you can see the term personifying, which means represent a quality or idea or concept by a figure in human form. Personification means क्या करना, represent a quality or a concept, किसी भी क्वालिटी और एक आइडिया और कंसेप्ट को मनुष्य की रूप देना पर्सनिफिकेशंस को कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत सारे कार्टून्स देखे होंगे जिसमें आपकी बहुत सारे एनिमल्स को मनुष्य के रूप दिया हो, मनुष्य के जैसे वो बोलते हो, मनुष्य के तरह से वह रिप्रेजेंट करते हो. जब फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव सीन द किंग ऑफ द फॉरेस्ट लायन इज टॉकिंग टू हिज सब्जेक्ट्स. आपने किसी भी कार्टून में देखे होंगे कई जानवरों को क्या दिया गया है, मनुष्य का रूप दिया गया. मनुष्य की तरह वो बोलते हैं, मनुष्य की तरह वो एक्ट करते हैं, हालांकि वो मनुष्य नहीं है. कहानी को समझाने के लिए, कहानी को हमारी समझ आ जाए उस तरीके से उन कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया कि मानो वो किस रूप में हो, मनुष्य की रूप में हो. तो इस आइडिया को हम क्या कर सकते हैं, पर्सनिफाइंग या पर्सनिफिकेशन कर सकते हैं. तो 19वीं शताब्दी के कलाकारों ने एक नई तरीका निकाला जिसमें वो क्या किए हैं, नेशन को भी व्यक्तियों का रूप दिया, नेशन को भी व्यक्तियों का रूप दिया. इन अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंट ए कंट्री एज इफ इट वेयर ए पर्सन. अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी की जो कलाकार थे वह राष्ट्र और देशों को भी किसके तरह रिप्रेजेंट किए, एक व्यक्ति की तरह रिप्रेजेंट किए. नेशंस वेयर देन पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर्स. 19वीं शताब्दी के जो कलाकार थे वह राष्ट्रों को और देशों को किस रूप में दर्शाएं, फीमेल फिगर, स्त्री रूप में दर्शाएं. द फीमेल form that was chosen in personify the nation did not stand for any particular woman in real life. जिस स्त्री रूप को वह राष्ट्र के रूप में दर्शाया गया, राष्ट्र को दर्शाने के लिए जिस स्त्री रूप को वो चुने हैं, वास्तविकता में in reality there were no such female existed. वास्तव में ऐसी कोई महिलाएं थी नहीं, बस वो अपनी कल्पना के अनुसार क्या किए हैं, वैसा रूप बनाए हैं. इमेजिनरी दे क्रिएटेड such female figure which used to represent a
nation. Actually, those kind of female figures were not existed in real life. Rather, it sought to give the abstract idea of the nation a concrete form. यानी जो राष्ट्र के आइडिया है उसको एक abstract form देने के लिए वह क्या चुने हैं, किसी महिला का रूप चुने हैं. That is the female figure become an allegory of the nation. इस तरह से जो महिला के रूप है वह किसकी allegory बने, राष्ट्र की allegory बने. What do you mean by allegory? A visible symbol representing an abstract idea. किसी भी कंसेप्ट और आइडिया को दर्शाने के लिए जो विजिबल फिगर हमने बनाए, जो इमेज हमने क्रिएट किए हैं, जो सिंबल हमने बनाए हैं, उसको एलोगरी कहते हैं, प्रतीक कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, भारत माता इज द एलेगरी ऑफ इंडिया. भारत माता को हम क्या मानते हैं, अपनी मातृभूमि मानते हैं. ड्यूरिंग 19th century, most of the artists represented nations as female figure, as we used to call our nation as Bharat Mata. Likewise, Germany and other nations in European countries also portrayed their mother as artisans of European countries portrayed their motherland in female figure. In India also our nation was portrayed in female figure, what we call Bharat Mata. The first figure of Bharat Mata was painted by the Indian painter Abhindranath Tagore in 1905. This was painted during the Swadeshi movement under the Indian independence movement. तो जिस तरीके से 19वीं शताब्दी में यूरोप के कलाकारों ने अपनी राष्ट्र को फीमेल फिगर में दर्शाने की कोशिश किए हैं, वैसे ही हमारे देश में भी कलाकारों के द्वारा भारत माता को भी एक काल्पनिक रूप देने की कोशिश किया गया है. आज जिस भारत माता के रूप आप देखते हैं वो सबसे पहले भारत के चित्रकार अभिंद्रनाथ टैगोर ने 1905 ईस्वी में बनाई थी. दिस वॉज पेंटेड ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट. और इस तस्वीर को कब रूपांतरित किया गया था? स्वदेशी मूवमेंट के दरमियान. बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट चली थी देश की आज़ादी की लड़ाई के दरमियान. उस वक्त देश की लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना और ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपनी आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरणा का कारण बने, इस हेतु किसका निर्माण किया गया था? भारत माता की जो पर्सनिफाइड तस्वीर है इसे बनाया गया था. As you have seen, Indian painter Abhindranath Tagore personified India by giving a female figure that we call Bharat Mata. You will recall that during the French Revolution also artists used the female allegory to portray ideas such as liberty, justice and the republic. जैसे कि आपने देखा कि भारत में 1905 ईस्वी में अभिंद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी मूवमेंट के दरमियान जिस तरीके से भारत को एक स्त्री रूप दिया, भारत को एक स्त्री रूप में दर्शाने की कोशिश किए गए, उसी तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन के दरमियान वहाँ के कलाकारों ने भी कई आइडियाज़ और कंसेप्ट को क्या करने लगे, एलोगरी प्रतीक बना करके उसको रिप्रेजेंट करने का कोशिश किया गया. जैसे कि लिबर्टी, जस्टिस, रिपब्लिक जैसी जो आइडियोलॉजीज है उसे भी क्या करने की कोशिश किया गया, प्रतीक बनाकर सिंबलाइज करके तस्वीरों के जरिए उसे दर्शाने की कोशिश किया. दीज आइडियाज़ वर रिप्रेजेंटेड थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और सिंबल्स. ये आइडियाज़ को किसके जरिए दिखाने की कोशिश किए गए हैं? थ्रू स्पेशल सिंबल्स एंड ऑब्जेक्ट्स. As you would remember, the attributes of liberty are the red cap. जैसे कि आपको पता है स्वतंत्रता का प्रतीक क्या थे? लाल रंग की टोपी थे. एंड द ब्रोकन चेन, और टूटी हुई जंजीर. टूटी हुई जंजीर जो है सारे बंधन से मुक्त होने की बात को दर्शाते हैं और ये स्वतंत्रता के
निशानी हुआ करते थे। वाइल जस्टिस इज जनरली ए big folded woman carrying a pair of weighing scales। उसी तरीके से जस्टिस को किसके जरिए दर्शाया गया? सफ़ेद वस्त्र पहने हुए एक महिला जिनकी आंखों में पट्टी बांधी हुई है और जिसके हाथ में तराजू लिया हुआ है, उस महिला को किस रूप में इस्तेमाल किए गए हैं? जस्टिस की एलोगरी के रूप में इस्तेमाल किया गया है, जिसकी तस्वीर हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे, जिसके जरिए आप किस किस को समझने की कोशिश करेंगे। एक्टिविटीज़ ऑफ लिबर्टी, जस्टिस, ये दोनों चीज़ों को पर्सनिफाइड फिगर्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। When we talk about allegories created by artists during 19th century, similar female allegories were invented by artists in the 19th century to represent the nation. As we have seen earlier, different concepts and ideas were represented through female figures. Likewise, female allegories were invented by artists in the 19th century to represent the nations. जैसे कि हमने देखा लिबर्टी, इक्वालिटी जैसी क्वालिटीज़ को और कंसेप्ट को पर्सनिफाइड किया गया, उसी तरीके से फीमेल फिगर्स को इन्वेंट किया गया 19वीं शताब्दी के कलाकारों के जरिए, जो किसको रिप्रेजेंट करते थे? नेशंस को रिप्रेजेंट करते थे। When we talk about representation of nations through female allegories, in France she was Christiane Marini, a popular Christian name. फ्रांस में फ्रांस को किस रूप में दर्शाया गया? क्रिश्चियन मरीन जो है एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है, जिसके जरिए किसको रिप्रेजेंट किए गए? फ्रांस को रिप्रेजेंट किए गए। क्रिश्चियन मरीन a popular Christian name which underlined the idea of people's nation। ये जो क्रिश्चियन मरीन है और वह किसको रिप्रेजेंट करते हैं? लोगों की आइडियोलॉजीज के आधार पर जो राष्ट्र है, लोगों की राष्ट्र को दर्शाते हैं। हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोस ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक। अब जो क्रिश्चियन मरीन है उसकी विशेषताओं को किससे लिए गए हैं? लिबर्टी और रिपब्लिक जैसी आइडियोलॉजी से लिए गए हैं। द रेड कैप, द ट्राई कलर एंड द कॉकेड, एक लाल रंग की टोपी, एक तिरंगा और एक कॉकेड। ये कॉकेड क्या होते हैं? किसी के सिर पर लगी हुई, मुकुट में लगी हुई जो रिबन है, सजावट की रिबन है। ये सारी चीज़ों को कहाँ से लिया गया? आइडिया ऑफ लिबर्टी और रिपब्लिक से लिए गए हैं। Then the statue of Marine were erected in the public square to remind the people of the national symbol of unity and to persuade them to identify with it। अब जब क्रिश्चियन मरीनी को किसकी प्रतीक बनाया गया? फ्रांस की प्रतीक बनाया गया, यानी फ्रांस की मातृ भूमि की प्रतीक बनाया गया। उससे पब्लिक स्क्वायर में खड़ा किए गए हैं। पब्लिक स्क्वायर मीन्स चौराहों पर उसकी मूर्तियों को बनाकर खड़ा कर दिया गया है, ताकि उस मूर्ति को देखकर लोगों के अंदर कौन सी भावना जगे? राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की भावना जगे। उस मूर्ति के जरिए वो किसको पहचाने? अपनी राष्ट्र को पहचाने। बिकॉज the statues of Marini erected in public squares represented the France nation. So when people see those erected statues, it will persuade them. It will persuade means it will force them to identify their nation। जब ये मूर्तियों को वो चौराहों पर देखेंगे, पब्लिक स्क्वायर्स में देखेंगे, तो वो उसके जरिए किसको पहचानेंगे? अपनी राष्ट्र की पहचान करेंगे और उससे उनके अंदर देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की भावना जगेंगे। इसके लिए क्रिश्चियन मरीनी की जो पर्सनिफाइड फीमेल फिगर है, ह्यूमन फिगर है, उसे क्या किया गया? पब्लिक स्क्वायर्स में बनाकर खड़ा कर दिए गए। मरीनीज इमेजेस वेर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स। इतना ही नहीं, क्रिश्चियन मरीनी की जो
इमेज है उसे सिकोम्बर और वहाँ की जो डाक टिकट है उस पर भी अंकित किया गया, ताकि जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं कॉइन्स के जरिए और जब भी आप वहाँ की जो डाक टिकट है, डाक स्टाम्प है, पोस्टल स्टाम्प्स, उसको देखेंगे तो आपके अंदर क्या जगेगा, अपनी देश की पहचान जगेगा, आपके अंदर देशभक्ति और आपके जो देश के प्रति जो एक भावना है, जो लव एंड अफेक्शन फॉर योर ओन नेशन, इट विल एनहांस। इसके लिए क्या किए गए हैं, पर्सनिफाइड फीमेल फिगर्स को बनाया गया है। When we talk about the figure of Christine Marini, you can see her figure here, which will give more abstract idea. How did she look like? What things are being taken from the ideas of liberty and republic, which are represented in the figure Christine. When we talk about the Christine Marie, the personified allegory of France, the female figure that represent France as a nation, the characteristics of this statue is taken from the idea of liberty and republic. You can see one red cap on her head, which is the symbol of free from slavery. Here you can see, when we talk about the Christine Marie, the female allegory of France, here in this picture you can see a red cap, which is the symbol of free from slavery. आप जब मरीन, क्रिस्टिन मरीन, जो किसका प्रतीक है, फ्रांस एज ए नेशन, उसकी प्रतीक है, आप इनके सिर पर क्या देख सकते हैं, लाल रंग की टोपी देख सकते हैं, जो किसकी निशानी है, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, यानी दासत्व से आज़ादी का प्रतीक है। देन यू कैन हैव ए ट्री कलर, इनकी 3 रंगों वाली एक झंडा है, जिसमें लाल, नीला और उजला रंग की 3 रंगों वाली इनका राष्ट्रीय ध्वज है, which we call the tricolor, as we have a tricolor in our nation and a cockade। और उसके अलावा आप यहाँ पे इनकी जो टोपी है उसमें क्या भी वो बांधते हैं, एक रिबन बांधती है, एक रिबन बांधती है ना, एक रिबन बांधती है या फिर एक बाज लगाती है। ये सारी चीज़ें किसकी पहचान है, मरीन की पहचान है, मरीन की पहचान है, जो क्या है, पर्सनिफाइड एलेगोरी फॉर्म ऑफ फ्रेंच नेशन है। ये रूप जो आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, जिस तरीके से हम अपनी मातृभूमि को भारत माता के रूप में दर्शाए हैं, कुछ उसी तरीके से आपके फ्रांस के लोगों ने भी क्या किया, अपनी देश को एक स्त्री रूप में दर्शाया, जिसकी विशेषताएं और कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ पे आपको समझाए हैं। ये फिगर देखते ही जो फ्रांस की चौराहों पर लगाई गई थी, फ्रांस की जो पोस्टल स्टैम्प है उसमें प्रिंट आउट किए गए थे, और वहाँ की सिक्कों पर जो है इनकी तस्वीर को जारी किया गया था, जिससे वो चाहते थे कि लोगों के अंदर देश की जो पहचान है। As the people of France personified their nation as Christine Marian, similarly the people of Germany also personified their nation as Germania. Germania become the allegory of German nation. In visual representation, Germania wears a crown of oak leaves, as German oak stand for heroism. जिस तरीके से फ्रांस के लोगों ने अपनी देश को मनुष्य के रूप में दर्शाया, या मनुष्य के रूप को अपना देश की प्रतीक बनाया, कुछ उसी तरह से जर्मन के लोग भी अपने देश को किस मानविक रूप में दर्शाया, जर्मेनिया नाम की स्त्री रूप में दर्शाया। जब हम बात करते हैं जर्मेनिया की विजुअल रिप्रेजेंटेशन की,
वह क्या पहनती हैं, एक मुकुट पहनती हैं ओक लीव्स की, यानी बतून की पत्तों से बना हुआ एक मुकुट पहनती है। जर्मन ऑक किसकी रिप्रेजेंटेशन है, हीरोइज्म का रिप्रेजेंटेशन है। व्हेन वी लुक एट दिस figure of Germania, you can see she is holding a sword in her hand. Here you can see a sword in her hand. Here in the picture you can see she is having a sword in her hand, which stands for ready to fight. अब ये जर्मेनिया के हाथ में आप जो तलवार देख रहे हैं, सोर्ड देख रहे हैं, उससे ये दर्शा रहे हैं कि शी इज रेडी टू फाइट, वह अपनी राष्ट्र के लिए लड़ने को तैयार है। और आप क्या देख सकते हैं, यू कैन सी अ ब्रोकन चेन ओवर हियर इन द डाउन, हियर यू कैन सी अ ब्रोकन चेन। द ब्रोकन चेन represents freedom from slavery, as we have discussed in the previous topic. Likewise, you can see olive. She wears a crown of olive on her head. अगर आपकी क्रिश्चियन मराइन एक लाल टोपी पहनी हुई थी, तो यहाँ पे आपकी जर्मेनिया जो है क्या पहनी हुई है, ओलिव क्राउन पहने हुए हैं, विच इज द सिंबल ऑफ पीस। इवन दो शी इज रेडी टू फाइट फॉर एस्टैब्लिशिंग पीस, वह लड़ने के लिए तैयार है। वो लड़ती क्यों है, शांति की स्थापना करने के लिए। और आपकी जो ओलिव क्राउन है वो किसकी प्रतीक है, शांति की प्रतीक है। वो लड़ना चाहती हैं अपनी देश की रक्षा के लिए और शांति एस्टैब्लिश करने के लिए, यानी शांति की स्थापना करने के लिए ही वो क्या करना चाहती है, लड़ना चाहती है। और आपकी ऑक लीव जो है, ऑक लीव किसकी प्रतीक है, बहादुरी की प्रतीक है। आपकी जो ऑक लीव्स है, जिसके मुकुट वो पहनती है अपने सिर पर, वो किसका प्रतीक है, बहादुरी का प्रतीक है। शी इज ब्रेव एंड शी इज रेडी टू फाइट, इवन दो शी इज रेडी टू फाइट, शी इज विलिंग टू एस्टैब्लिश पीस। और वह शांति स्थापना करने और देश की रक्षा के लिए क्या करना चाहती है, लड़ना चाहती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यू कैन सी द फिगर ऑफ ए राइजिंग सन ओवर हियर। यहाँ पे जो गोल्डन कलर है, जो येलो कलर्ड पोर्शन है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, राइजिंग सन को रिप्रेजेंट करते हैं। द राइजिंग सन रिप्रेजेंट्स बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। अब जो उगती हुई सूरज है वह किसको दर्शाते हैं, एक नई युग की शुरुआत दिखाते हैं। और यू कैन सी a tricolor in her hand, which is the national flag of Germany. आप यहाँ पे 3 रंगों वाली एक राष्ट्रीय ध्वज भी देख सकते हैं। कौन कौन सी कलर है इसमें, ब्लैक, रेड एंड येलो। ये 3 रंगों वाली एक झंडा भी आप देख सकते हैं, जो किसकी नेशनल सिंबल है, जर्मनी की नेशनल सिंबल है, विच वाज डिजाइंड एंड क्रिएटेड बाय लिबरल नेशनलिस्ट। Later it became the national flag of Germany. So we have seen the 2 allegories of nation. One is of Germany and the other was of France. किस तरीके से ये दोनों देश के लोगों ने अपनी राष्ट्र को फीमेल फिगर में या मनुष्य के रूप में दर्शाया गया है। How these 2 nations have personified their nations in the form of allegories, especially in female figure. और ये फीमेल फिगर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, इस चीज़ों को हमने बहुत बारीकी से समझे हैं। आई होप दिस वीडियो विल वेरी हेल्पफुल टू यू टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक, विजुअलाइजिंग द नेशन. इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द bell icon. Keep supporting me because it take a lot of efforts to make videos. It will be an encouragement if you keep liking my videos and subscribing my channel. So please support me. Be happy, be healthy, stay home, stay safe. That's all. Thank you. Have a great time.